Now today we will discuss how we can use the different escape sequences. Basically we use the concept use of escape. Normally we are using few escape sequences. Escape like /n, /t and /v. Normally we are using frequently we are using /n and /t. Rarely we are using the /v symbol, but today we will see how we can use all these symbols to create our own things. Let's we already discussed the concept. We will use only the print command and all these escape sequences. First question is how to print a table of number, and we have to print a table in a tabular format. Print a table of number 5 and display in the tabular format. Tabular format पता है कि where we are using the rows and columns concept, so we will use only these three symbols and then we will display it. We will print the table of number, table of 5. Now after that, if I want to put a gap between this, so then I can put a /n. Each and every time the use of /n is to create a new line. /t का use है horizontal space. Is vertical space. Actually it is displaying a symbol, and when I'll print this thing, you can see first it will ask me to save the things. Table 5. I am saving on the where I am saving your class concepts in a PDF file. It will be convenient for me to send the things later on also. Now you can see after table 5 it is has created a new line for us. And after that, suppose if I want to print anything, first I'll use the /v so that I can display /, and after that I can use 5 into 1 equal to, and after that I am putting double quotes, putting all these things in the double quotes, and after that I am just doing the things in this way. When you are doing some calculation in the print statement, and if you want to print something as it is in the same print statement, then you have to separate with a comma. Let's see how it will print the things. And after that, if I want to close the things, then we will see how it will print the things. Invalid syntax. Acha, here I've used the X symbol, multiplication. This is a asterisk symbol. Table of 5, यहाँ पर it has shown just a single symbol for that. If I want to terminate the things with the /v also, again I'll put this thing, then I'll again put the /t, and then again I'll put the /v also. You can't use both the things simultaneously because both the symbols are separate. बोलो बेटा. ये /v/t वाला एक बार वापस समझा दोगे? /t होता है अगर suppose if I am not using this thing /t here, /v आता है, it will just show you the symbol for that. यहाँ पर देखो, there is no gap. Again if I am putting /t over here, then it will give a space, horizontal space. You can see there is a gap between f into 1 equal to यहाँ पर gap bar. मैम ये सिंबल क्या होता है? सिंबल ये ऑटोमेटिकली पीछे से ही फिक्स्ड है.
वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब के लिए वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है कि दिस इज वर्टिकल टैब, क्योंकि आप टैब का मतलब स्पेस दे रहे हैं। तो वर्टिकल टैब के लिए यू कांट सी द थिंग्स, दैट इज वाई दे हैव यूज द सिंबल सो दैट यू कैन सी कि हाँ ये वर्टिकल टैब बन रहा है यहाँ पर। It is working is in this way in the Python. Other languages में it is working in a different way also. My mistake. And after that I'm just copying and pasting the things. Here I'm just using the two thing. Again I'm printing. मैम वो स्लैश वी स्लैश टी के बाद आपने स्पेस दी है। Slash v slash t. हाँ, I have put a space. If you don't want to put a space then it is okay. Your choice. मैंने इसलिए दिया सो दैट यहाँ पर अभी बिकॉज यू आर जस्ट चेकिंग कि मैन हाउ आई एम राइटिंग द थिंग्स, तो आपकी रीडेबिलिटी के लिए है, नथिंग एल्स। बिकॉज इफ आई राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द थोड़ा साथ साथ लिख लूँगी विल जॉइन तो आपके लिए देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसीलिए दैट इज़ वाई आई पुट द स्पेस, ताकि आपके लिए समझ आ जाए कि हाउ आई हैव रिटन द थिंग्स। प्रिंट स्टेटमेंट को एक सिंगल साथ साथ भी लिख सकते हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंट फंक्शन इज ईच एंड एवरी टाइम बट if you have written the print statement it will print your value, यानी कि display your things in the next time. यहाँ पर नहीं ले रहा, normally it is taking. Let's see how it will print the thing. यहाँ पर space का problem आ रहा है, तो मैं यहाँ पर spaces के लिए यहाँ इसको /t यूज़ कर देती हूँ अगेन, सो दैट प्रॉपरली वो फॉर्मेटेड मैनर में डिस्प्ले करें। मैम फिर हम स्लैश भी यूज ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ देखो, जब व्हेन आई एम डिस्प्लेइंग ऑल द थिंग्स, यहाँ पर देखो ये बॉक्सेस की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा लग रहा है ग्रिड बन रही है। तो ग्रिड की फॉर्म में अगर इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग देन यू कैन यूज द ये /v। अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस थिंग देन इट इज प्योरली अप टू यू कि आपने नहीं मैम बोलो। ये सिर्फ अगर आपने अलग प्रिंट कमांड देना है बट उसको सेम लाइन में डालना है तो कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज होएगा? सेम लाइन का मतलब मैम मतलब जैसे आप प्रिंट जब कर रहे हो तब 5 × 1 = आ रहा है, फिर उसके नीचे 5 × 2 आ रहा है। अगर आपने 5 × 2 को 5 × 1 के साइड में डालना था, साइड में डालना है तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए फिर मुझे एंड डालना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया है? आई एम नॉट मिक्सिंग सो मेनी कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ तक समझ आ रहा है। अब yes, इसमें एक चीज हो रहा है, आफ्टर टेबल इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग डॉटेड अगर आपने प्रिंट करना है तो मैंने आपको बताया था डॉट को प्रिंट करो एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई दैट थिंग। सपोज मैंने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाटसोएवर यू आर डिस्प्लेइंग that it will display that thing, it will create a 20 times copy of that symbol. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉटेड लाइन की फॉर्म में आ गया। नाउ आफ्टर दैट इफ यू वांट टू कंप्लीट द सेम थिंग, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आते हैं। यहाँ पर इन दिस वे आई हैव एनक्लोज्ड माय थिंग इन द टेबुलर फॉर्मेट। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है देन यू कैन रिमूव। यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा हैं तो आई एम जस्ट रिमूविंग द 17 कर देते हैं। यहाँ पर concept is that कि when you are using the print function and if you are using the multiplication operator with the string part then it will create a number of copies of that thing. तो अब इसको चेक करते हैं, तो अब आपका ये प्रॉपरली उस फॉर्म में आ गया। We want to put a space between this thing, either you can use the /t the way I used here, तो ये इस फॉर्म में आएगा। अगर आपने नहीं करना है देन यू कैन मैनुअली में चीज़ें प्रॉपरली नहीं डिस्प्ले होती हैं। व्हेन यू विल पुट स्पेस 1 2 यहाँ पर कई बार वो चीज़ों को फॉर्मेटेड उसमें डिस्प्ले नहीं कर पाता, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी आर यूजिंग /t का सिंबल। मैनुअली भी अगर इफ़ यू नो, क्योंकि कई बार वी आर फॉरगेटिंग कि हाउ मेनी टैब्स स्पेस बार आई हैव यूज्ड टू गिव अस स्पेस बिटवीन दोज थिंग्स, तो उसके लिए हम to avoid those things we are using the things. अब /t का यूज सिर्फ ये, यहाँ पर obviously 3 की जगह यहाँ पर you have to use 3. अब the next question
इसका स्टूडेंट का था डाउट कि मैम इफ वी हैव टू प्रिंट द ऑल these things because here it is displaying everything in the next line, but if I want to display the next value in the same line of the first, जहाँ पर भी आपने करना है just put a comma, यानी कि I am separating the things and after that end का use कर सकते हैं. Here I am putting just a space between that. End का मतलब होता है I am terminating this line. ये वाली लाइन किससे टर्मिनेट होगी? आपकी स्पेस से, और उसके बाद जो whatsoever I have written in the next line it will show in the first line with the first line. कहीं पे भी wherever you are putting, suppose if I am putting after the 5 into 4 value, if I am putting the same thing after this का जो आपका पैरामीटर है उसके बाद whatsoever it is written after the f into 4 next line only a single line it will show in the same line. एंड का यूज ये है, अगर मुझे ये वाली चीज को सेम प्रिंट करना है सेकंड लाइन के साथ करना है, देन यू हैव टू यूज द, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ईशान. मैम आई एम म्यूटेड. तो एक्चुअली सिंबल तुम्हारा आ रहा था, यहाँ तक क्लियर है? कुछ ऐसा जो कंफ्यूज कर रहा हो जिस भी लाइन के बाद इफ यू वांट टू यूज द नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट इन द विद द प्रीवियस लाइन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर सपोज इफ आई वांट टू प्रिंट द 3 वाली वैल्यूज को विद द सेकेंड लाइन, तो देन यू हैव टू प्रिंट इन दिस वे. इफ आई वांट टू प्रिंट द 4th लाइन विद द 3rd लाइन, तो देन यू हैव टू यूज द एंड विद इन द 3rd लाइन. 3rd के साथ 4th को ज्वाइन करना है, तो 3rd के ही लाइन पर प्रिंट स्टेटमेंट पे यू हैव टू स्पेसिफाई दिस थिंग. जिस लाइन को आपने ज्वाइन करना है, सपोज आई हैव टू ज्वाइन 6th वाली लाइन को विद द 5th लाइन, तो देन आई हैव टू स्पेसिफाई द थिंग्स विद इन द 5th लाइन. जिस लाइन पर नहीं करना तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा. Here I've used all the things with the thing. Now you can see सारी चीज़ें एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगी यहाँ पर. क्लियर टू यू? कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो, अगर इफ़ यू विल नॉट यूज़ दिस थिंग तो ऑब्वियसली नथिंग विल हैपन. आपका नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ यही है कि ईच एंड एवरी टाइम इफ़ यू आर यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन फॉर यू. अब मैंने 5th और 6th को कंबाइन करना है, 6th लाइन को ज्वाइन करना है किससे? विद द 5th लाइन, तो आई हैव टू यूज दैट थिंग विद द 5th. यहाँ तक कुछ ऐसा जो अभी तक कंफ्यूज कर रहा हो? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज द वर्टिकल टैब. ये तो सिर्फ मैंने यूज बताया था. इन दिस वे यू कैन यूज द वर्टिकल टैब, योर चॉइस. अगर आपने ये सारी चीज़ों को वर्टिकल टैब रखना ही नहीं है सब में, क्योंकि बिकॉज ईच एंड एवरी आफ्टर ईच एंड एवरी वैल्यू इट इज़ शोइंग द दिस सिंबल. अगर आपने नहीं करना देन इट इज़ ओके. यहाँ पर द जस्ट पुट द एंटायर थिंग इन दिस वे. यहाँ पर यहाँ पर डिस्प्ले कर दो, कॉमा से सेपरेट कर दो. अभी इन सबको हाइड करते हैं. दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट, आपको बाद में बताऊंगी. एंड वाला यूज किया था वो एक बार वापस दिखा देंगे? You can note it down please on your register. Here beta, I have not used the end symbol in the next line because after the next last line there is no print statement. There is one more print statement, but I just don't want to join the last line last line with the second last line. That is why I have not used. Just note down this code and after that I'll go back to that thing. And don't use the end symbol for that. चलो अभी end लिख लो, later on we can do that thing.
एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम हमने जब फर्स्ट स्टेटमेंट है जो प्रिंट टेबल ऑफ 5/n, उसके बाद हाँ। हम सारा जो भी है सबको अगर हम 3 कोट्स में क्लोज करते हैं तो वो प्रिंट नहीं हो रहा, उसको उन मतलब सबको रिजल्ट क्या नहीं आ कर रहा दे? उसमें। उनको सबको क्या कर दे? हम ट्रिपल कोट्स में क्लोज करते हैं उसके बाद जितना भी है। क्यों करते हो? ये लो, अगर इसके बाद सब कुछ ट्रिपल कोट में डाल दिया और यहाँ पे भी मैंने ट्रिपल कोट डाल दिया, then nothing will execute on the screen. बताती हूँ, यही फर्स्ट पूछा नोट था डाउन क्यों। दिस थिंग। अब ये रुक जाओ। फर्स्ट नोट डाउन द कोड ऑन योर रजिस्टर प्लीज। डोंट लीव द थिंग एज इट इज एंड डोंट लीव द थिंग्स फॉर नेक्स्ट क्लास, और कि आई विल नोट इट डाउन लेटर ऑन। नोट डाउन द कोड। हम स्लैश टी स्पीसीज के लिए होता है ना? बोलो बेटा। हम स्लैश टी स्पीसीज के लिए होता है ना? स्लैश टी किस लिए होता है? स्पेस के लिए बेटा। अब इसका दूसरा यूज भी बताती हूँ। अभी यहाँ तक लिखो। When I'll print the things and I'll execute the code, it will show your things in this way. I'm just copy, select किया और यहाँ लिख देती हूँ आउटपुट। यहाँ पर whatsoever written with this code, it will show me the result in this way. Suppose if I am changing the things, if I am removing this thing, then it will show my result in this way. Just copy and pasting the things in this way. जब यहाँ पर you can see I have print in the entire thing in the form of triple quotes. तो whatsoever जब भी when we are printing anything or enclosing anything in the form of triple quotes, that things will become a comment. That means string का part होगा, but it will not execute when I'll execute the code. तो ये क्या होता है? When I am enclosing anything in the triple quotes, तो क्या होता है? इसको हम कहते हैं multi line comment. Then it means it is for documentation, means it will the not consider the program and will not execute. प्रॉपरली आपको बाद में लिखवाऊंगी। फॉर द मीन टाइम मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वी कैन रीड दोज थिंग्स एज इट इज, कुछ भी नहीं होगा, और ये प्रोग्राम का पार्ट कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज इट विल नॉट एग्जीक्यूट द थिंग्स। एंड इफ यू वांट टू स्टोर द कोड along with the result, कि when I'll write this code, the I'll get this type of result, so then you can store that result in the triple quote.
समझ आ रहा है? मैम मैम अपने वो सिंटेक्स में इंड के साथ एक सेप भी लिखवाया था, उसका क्या यूज है? मैंने प्रिंट के साथ क्या लिखवाया था मैम यहाँ इंड पर? के साथ मतलब सिंटेक्स में लिखवाया था ना, इंड के साथ वो एक SEP सेप वाला भी। प्रिंट के साथ SCT क्या होता है? SEP। SCP। अच्छा रुक जाओ, अभी पहले इतना तो फेमिलियराइज हो जाओ। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर हमने आज सिर्फ ये किया कि हम कैसे टेबल को प्रिंट कर सकते हैं इन डिफरेंट वे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू प्रिंट योर टेबल ओनली इन दिस वे। अब आप इसको दूसरा सा और चेंज कर लेते हैं जो सिंपल वे है। आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, ना तो /v यूज कर रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग ऑल दिस थिंग्स आफ्टर दिस थिंग। और अगर आपको ये प्रिंट करना है देन इट इज प्योरली अप टू यू। डोंट प्लीज। दिवांशु, आज दिवांशु आए? गुड। गुड मॉर्निंग दिवांशु, गुड मॉर्निंग। नो नीड टू रिप्लाई। एनीवे, आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आपका रिजल्ट इस फॉर्म में दिखाएगा बिकॉज दैट स्टूडेंट आस्क कि मैम हाउ वी कैन प्रिंट द थिंग्स इन दैट वे। दैट इज वाई आई डिस्कस द /t का यूज। अगर आपने ऐसे प्रिंट करना है देन यू कैन प्रिंट योर थिंग्स। one more thing, in the exam there is no hard and fast rule ki that you have to write the code in a one way. There are so many ways also. agar aapne, if you don't want to use this thing, so then no need to use this thing. Simply you can display the things and remove all these things. It is purely up to you. यहाँ पर यू मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इससे आपको पता चल जाएगा हाउ यू हैव टू यूज द डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर इसने रिजल्ट आपका इसी फॉर्म में दिखाया है। यहाँ पर मैं मल्टीपल विंडोज के साथ काम कर रही हूँ। देखो ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पर स्विच करते हैं, फिर यहाँ स्विच करते हैं। तो व्हेन देयर आर मल्टीपल विंडोज, सपोज मैंने यहाँ पर इफ आई एम ओपनिंग माय ओन डॉक्यूमेंट वेयर आई एम स्टोरिंग योर क्लास इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में CS in the 11th CSP, तो there are 3 windows which is opened till now. यहाँ पर ये there are 3. So now I have to switch it. What I have to use is just press the Alt button from your keyboard. Just hold that button and then click on that way. Hold that Alt button and with another finger you can just put the tab. जहाँ पे भी आपने वो चीज़ wherever you want to open that thing, तो just यहाँ पर टैब फोकस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर फोकस आती है तो देन यू हैव टू रिलीज द ऑल्ट बटन। गेटिंग माई थिंग्स? ऑल्ट करो, जिन स्टूडेंट्स को पता है फाइन, अगर जिनको नहीं पता मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। जस्ट प्रेस द ऑल्ट बटन एंड देन होल्ड दैट बटन, उसको प्रेस करे रखो एंड देन प्रेस द ऑल्ट। ऑल्ट को दबाओगे तो आपकी ये टैब्स स्विच होती रहेंगी। जब टैब्स को हम स्विच कर रहे हैं, मुझे जहाँ पर स्विच करना है एंड देन यहाँ पर फोकस आ गया, देन आई हैव टू रिलीज द ऑल्ट बटन फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हुआ। अब उसके बाद इफ आई हैव टू स्विच टू दिस थिंग देन जस्ट रिलीज द ऑल्ट बटन फॉर दैट। यहाँ तक समझ आया? यूज ऑफ ऑल्ट टैब सो दैट यू कैन स्विच ऑन मल्टीपल विंडोज एट अ टाइम। क्लियर है? वन मोर थिंग, here I have written so many things. Suppose if I am यहाँ पर उसको मिनिमाइज, यहाँ पर इसका नॉर्मल मोड में रखते हैं। अगर इफ आई वांट टू मूव टू द लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो की यूज करते हैं, राइट एरो
अगर और मुझे अब फर्स्ट पे जाना है तो मुझे यहाँ पर ये यूज करते हैं. यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. क्या करना है, व्हेन यू हैव टू मूव टू द end of the line, just press, there is a button on your keyboard, E and D, just press that button, immediately you will move at the end of the line. And when you have to go to the first line, in the beginning of the that line, just press home button, then immediately you will go to the home of that particular line. Clear है? एंड बटन किसी भी लाइन के एंड पर जाने के लिए, होम बटन किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए. देन यू डोंट हैव टू वेट कि मुझे यहाँ पर इसमें यहाँ मूव करना है, यहाँ मूव करना है. देन इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर दैट. नॉर्मली वी आर नॉट डूइंग. अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, साथ साथ करने लगोगे, देन इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू व्हेन यू आर राइटिंग द कोड. एंड किया, सिंपल एंड पर आए, होम किया, स्टार्टिंग पे आए. इफ़ आई वांट टू गो अप, स्टार्टिंग में जाना, पेज अप कर सकते हैं. और अगर इफ आई हैव टू स्क्रॉल डाउन तो पेज डाउन यूज कर सकते हैं. क्लियर है? Yes, हेलो. ma'am. तो इन दिस वे वी कैन यूज द थिंग्स. सेम ऑल्ट टैब टू राइट द थिंग्स. ऑल्ट टैब यूज पता होना चाहिए. अब इन दिस देयर आर सो मेनी वेज. अब इफ यू वांट टू प्रिंट द थिंग्स डॉटेड लाइन में, तो आई हैव जस्ट शोन यू दैट. नाउ आफ्टर दिस there is one more code. Suppose if I have to print anything, I'm just maximizing the things. Maximize का भी एक कोड है, that I'll discuss later on. मतलब शॉर्टकट की है. प्रिंट करके, किसी स्टूडेंट का डाउट था, हाँ, सेपरेटर के लिए. सपोज if I am writing so इससे the same thing, 5 into 1, and then I am writing 5 into 1, and then I am writing 5 into 2 equal to, I am just using only these two things so that it will be convenient for you. अब इस स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि मैम वी हैव यूज, यहाँ पर हमने किया यूज द प्रिंट, if I am using the symbol this thing and I am printing that thing 10 times, or if I am printing the things with the end, so whatsoever I have written in the next line it will show in the with the first line. ये वाली चीज़ यहाँ तक आई. मैं इन सबको ना, I am just hiding all the codes so that it will be convenient for you just to understand them. What I am doing, I am just making rest of the codes in the form of commented. तो यहाँ पर मैंने सबको have enclosed the entire thing नहीं कर रहा है. I have to do it one by one. Just give me a second so that I can complete the thing. Suppose if I want to bifurcate the things, so in this way it will be convenient for you to understand the code also. Just I am removing. Now these two lines will execute because I have not enclosed them in the triple quote. Let's see how it is showing the result to me. ये भी टेबल नहीं हुआ अभी तक. Which one table is not? ये वाला. Let's see. यहाँ पर रिजल्ट देखो, 5 into 5 1, और यहाँ पर अब मुझे इनके बीच में if I want to put the space with some other symbol, for that what I have to use, मैं एक और सिंबल आता है सेपरेटर, SCP. यहाँ पर सेपरेटर में if you want to put the things, यहाँ पर हैश डाल दिया तो now you can see. एक चीज़ और, कॉमा सेपरेट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जस्ट टू सेपरेट वन थिंग विद द अदर. कभी भी कोई चीज़ एक जैसी सेम है और अगर मुझे उसको दूसरी चीज़ से सेपरेट करना है, देन आई पुट द कॉमा. क्योंकि बिकॉज आफ्टर द string thing it is showing some calculation, and after calculation it is showing something in the form of fixed value, and after that there is a some calculation, and then there is something else. So when there is something else after a certain things, then we have to separate that thing with a comma. So let's see how it will print the things. Now you can see
आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, जहां पर भी मैंने कॉमा लगाया था उससे पहले व्हाट ही डिड, ही जस्ट पुट दिस सिंबल। दोबारा बताती हूँ, जैसे मान लो मैंने इस सिंबल के बाद, अब मैं दोनों स्क्रीन आपको शो करती हूँ। मैम तो मतलब स्पेस की जगह हैशटैग डाल दी। स्पेस नहीं, जहां पर भी चीजों के बीच में आपने कॉमा लगाया, दैट मीन्स यू सेपरेटेड वन थिंग विद द अदर। एक चीज को, यहाँ पर 5 into 1 था, एक चीज पूरी कंप्लीट हो गई, देन यू हैव सेपरेटेड विद द कैलकुलेशन पार्ट। जो भी चीज एक चीज से दूसरे को सेपरेट कर रही है विद द कॉमा, और वहां पर आई हैव यूज दिस सिंबल। ये सेपरेटर क्या होता है, कोई भी चीज आपने सेपरेट कर रहे हो और अगर उस सेपरेट के साथ आप चीजों को ऐड करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द सिंबल, यू कैन पुट एनी सिंबल। अगर आप कुछ नहीं डालते हो देन इट विल टेक अ वाइट स्पेस, वाइट स्पेस। अगर कुछ नहीं डालते हो तो आपको कुछ नहीं ले रहा। यहाँ पर देखो, इफ आई एम नॉट पुटिंग एनी स्पेस बिटवीन दिस थिंग देन इट विल नॉट टेक वाइट स्पेस। पहले हम सिर्फ एंड को करते हैं, देन इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल्सो। देखो यहाँ पर एंड में मैंने आई हैव नॉट पुट एनी स्पेस, देन यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर 10 के बाद देखो साथ में आ रहा है, इफ आई एम पुटिंग अ स्पेस, अ सिंगल वाइट स्पेस, देन यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर उसने ही पुट सम स्पेस। गेटिंग माई थिंग्स कि एंड का मतलब होता है दैट दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज एंडिंग विथ स्पेस एंड आफ्टर दैट इट विल एड अनदर स्टेटमेंट। एक सिंगल प्रिंट को हम एंड किससे कर रहे हैं, स्पेसिस से। अगर आपको नहीं करना, यू कैन पुट एनी सिंबल ऑल्सो, डॉलर का सिंबल डाल रहे हैं सपोज, यू कैन पुट एनीथिंग हियर। और अगर आपने ये नहीं लिखना, लिख दो माई लाइन इज टर्मिनेटिंग, specify this thing also. Clear है? End का मतलब होता है that this line is completing and how you are filling this line end के साथ आप इसको कर सकते हो, then whatsoever it is written in the next line it will join with the first one. ये end का use है। कुछ नहीं लिखते हैं तो कुछ नहीं आएगा, you can write anything with this thing. Clear to you? कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया? कल हम सेपरेटर को अलग से यूज करेंगे, एंड के साथ यूज नहीं करेंगे। अब मैं एंड को दोबारा से यहाँ से रिमूव करती हूँ और आई एम जस्ट यूजिंग द सेपरेटर सिंबल एंड नाउ यू कैन सी हियर आई एम नॉट पुटिंग एनी सिंबल इन द सेपरेटर पार्ट। तो यहाँ पर स्पेसेस लिया, सपोज सेपरेट करने में दिस इज, सेपरेटर के साथ ईच एंड एवरी टाइम व्हाटसोएवर यू हैव सेपरेटेड विद कॉमा, वहां पर उसने he just added that word whatsoever you have written in the separator. Clear to you? नहीं है तो हम इसके और uses करेंगे। आज vertical का use किया था, tomorrow we will see how other uses of both the symbol separator and the end. Clear है? Now I'll share the entire document. I'll upload it. तो आपकी ये चीज़ों को दोबारा अपलोड कर दूंगी सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट, यू कैन एग्जीक्यूट द एंटायर कोड आल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय